Namaskar, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan, and this is the part of my new series of videos related to business law. I have already covered several aspects of the Sales of Goods Act 1930, like what is the basics of Sales of Goods Act and contract of sales, difference between sale and agreement to sale, and difference between condition and warranty. Today in this video I am going to cover the express and implied condition and warranty, and this is also very important for your examination point of view. Because of that, if in the examination the question related to condition and warranty will be asked in as a long type question, so you must be explain the implied and express condition and warranty also. If it will be asked in the short type question, then it will be difference between condition and warranty. Now let's start. I would like to start with the definition of condition and warranty. What is condition? Already I have explained in previous video. तो सेल्स ऑफ गुड्स सीखना है तो एक एक करके आप वीडियो देखते आएंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियरेंस आपका होता रहेगा. तो इस वीडियो के लिए कंडीशन इज अ मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कंडीशन इज द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. If the condition not fulfilled, then buyer have a right to repudiate the contract, and the warranty is the collateral to main purpose. It is not a main purpose, it is collateral to the main purpose. If in the condition of breach of contract, buyer have a right to make a claim only, not repudiate the contract in the case of warranty. अब फिर से वही बात वहीं से शुरू करते हैं कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स इज व्हाट? सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर, सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन अ गुड्स टू द बायर फॉर द प्राइस. इट मीन्स देयर आर टू पार्टी, द फर्स्ट वन इज सेलर, सेकेंड वन इज बायर. दो पार्टी हैं, दोनों के बीच में जब ट्रांजैक्शन होगा, प्रीवियस वीडियो में भी ये बात मैंने बताई थी, जब ट्रांजैक्शन होगा तो एक गुड्स डिलीवर कर रहा है, एक पैसा पेमेंट कर रहा है, तो दो पार्टी हैं, सेलर और बायर. तो देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन, देयर मस्ट बी सम स्टिपुलेशन. दिस स्टिपुलेशन इज कॉल्ड this stipulation may be condition or warranty or both. It means condition and warranty is what? Terms and condition of contract of sales. समझ में आ गई बात? तो ये टर्म, ये जो कंडीशन और वारंटी है, it may be express, it may be implied. What is the means of express? Express either written or oral is considered as a express. भाई हमने बोला कि हमको सोनी की N95 मॉडल चाहिए, तो सोनी की N95 मॉडल चाहिए, हमने एक्सप्रेस किया है कि नहीं, और उसने बोला कि 10 ईयर की वारंटी है इस पे, तो वो भी एक्सप्रेस है. रिटर्न दिया, 10 वारंटी कार्ड दिया, ये भी एक्सप्रेस है. तो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटी. द प्रॉब्लम इज व्हाट? द being a student of law, we need to understand the implied condition and warranty. ठीक बात है? तो बहुत जरूरी क्या है कि हमको implied condition and warranty को सीखना पड़ेगा. तो let's start. What about the implied condition and warranty? These are implied by law in every contract of the sales of goods. This is implied by the law. It means it is enforced by the law. The obligation is created by law, not created by the parties, it is created by the law. It means कि भाई लॉ ने पहले से बना के रखा है कि अगर ऐसा ये होगा तो these are some implied condition and these are some implied warranty at the time of making the contract of sales. वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन कंप्लीट देखिएगा.
कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए, द फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल मीन्स व्हाट? टाइटल मीन्स ओनरशिप। मैंने बताया था ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, स्पेशल प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ओनली। तो यहां पे क्या है, कंडीशन एज टू टाइटल मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, कंडीशन एज टू टाइटल इज an implied condition. It means ownership must be transferred from seller to buyer. This is the means of condition as to title. समझ में आ रही बात? मतलब कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक मोबाइल शाश्वत को बेचा, सौरभ सेल हिज मोबाइल टू द शाश्वत फॉर 10,000 रुपीज। तो मैंने उनको बेच दिया, पैसा ले लिया और मोबाइल दे दिया। तो क्या सेल्स कंप्लीट हो गई एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स? नो। जब तक उसकी रिसिप्ट हम बना के नहीं देंगे, उनके नाम से वो ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि अब ओनरशिप उनके पास जानी चाहिए। नहीं तो देखिए, एक अगर शाश्वत के पास ओनरशिप चली गई तो वो किसी और को भी बेच सकते हैं, या अब उनका राइट है, जो भी उनको सर्विसेज मिलनी होगी वो उनके नाम से उनको मिलेगी, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही कार बेचने के केस में भी होता है। आरटीओ में बोलते हैं कि भाई नाम ट्रांसफर हुआ कि नहीं। नाम ट्रांसफर करने का मतलब कि ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लोग बेच तो देते हैं, जैसे एक बार एक्स ने वाई को एक मोबाइल बेचा, एक्स ने वाई को मोबाइल बेचा 10,000 रुपए में, लेकिन वो मोबाइल, उसका जो ट्रू ओनर था वो जेड था। बाद में जेड ने वाई के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ द मोबाइल। तो आपको तो मोबाइल देना पड़ेगा क्योंकि वो जेड इज द ट्रू ओनर। बाद में भले से आप एक्स से उसका डैमेजेस क्लेम करें, अपनी प्राइस रिकवर कर ले, यू आर एंटाइटल्ड, बट ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? एंड द नेक्स्ट वन इज कंडीशन इन द केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। कंडीशन इन द केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, व्हाट डज मीन्स? कई प्रकार के इसमें ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट देखा नहीं है, अगर बायर ने प्रोडक्ट देखा नहीं है, केवल एज पर डिस्क्रिप्शन खरीद लिया। आजकल हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि भाई मोबाइल, अभी आज ही हमने एक मोबाइल खरीदा, तो उसमें देखते हैं कि भाई कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, क्या रैम है, हार्ड डिस्क उसका क्या है, तो ईच एंड एवरीथिंग मतलब डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हमने उसको परचेज कर लिया। लेकिन जब हमने परचेज किया, मोबाइल तो हमने देखा नहीं, तो हमने केवल एज पर डिस्क्रिप्शन खरीद लिया। लेकिन आने के बाद अगर वो प्रोडक्ट एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है तो क्या होगा? देन बायर इज इंटाइटल्ड टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज इम्प्लाइड कंडीशन। As already I told you, in the case of condition, because condition is the main purpose of the contract, then aggrieved party have right to repudiate the contract. It means in this condition you have purchased mobile as per description, but when you got the mobile, then mobile is not as per description, then you are entitled to terminate the contract on the ground of this is the implied condition. What is the implied condition? Condition in the case of sales of description. मतलब कि डिस्क्रिप्शन कई कंडीशन में हो सकता है। डिस्क्रिप्शन देख के खरीद लिया, गुड्स देखा और डिस्क्रिप्शन के बेस पे खरीद लिया, या दोनों का कम्युनिकेशन हुआ, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन बायर इज इंटाइटल्ड टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट अगर सेल्स एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है तो। ऐसे ही आजकल पैकिंग क्यों हुआ? पैकिंग इसीलिए हुआ कि डिस्क्रिप्शन पता चल जाए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप देखते हैं भाई इतने % विटामिन ए, 3% कार्बोहाइड्रेट, 4% प्रोटीन, ये सब क्या है? दीज आर डिस्क्रिप्शन। पैकेजिंग में डिस्क्रिप्शन ऐड किया गया है कि एज पर डिस्क्रिप्शन आपका प्रोडक्ट हो, अगर नहीं होगा देन यू आर एंटाइटल्ड टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंडीशन इन द केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल आर, दोनों एक साथ करते हैं, सेल बाय सैंपल। First of all, we need to know what is sample. Sample is a part of population.
सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल पॉपुलेशन। तो सैंपल क्या है कि सैंपल एक रिप्रेजेंटेटिव है होल पॉपुलेशन का। आपको बिस्किट खरीदना है, आपको एक क्वालिटी का बिस्किट खिलाया गया, बोला कि इसी क्वालिटी का है, आपने बोला ठीक है 10 पेटी भेज दीजिए। बाद में जब आपको बिस्किट मिला, आपने रिसीव किया, तो बिस्किट एज पर सैंपल नहीं था। तो इट मींस नाउ यू आर इंटाइटल्ड टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन इन द केस ऑफ सेल बाय सैंपल। सैंपल मस्ट बी एज सेम टू द होल पॉपुलेशन। गॉट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट सैंपल। कभी कभार सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों को साथ में रखते हैं, तो दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज क्वालिटी कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। देखिए यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन ऑफ रूल भी है, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या मामला है कि क्वालिटी ऑफ फिटनेस मीन्स व्हाट। एक पहला एग्जांपल हमने दिया था कि क्वालिटी ऑफ फिटनेस, जैसे मान लीजिए मैं एक दुकान पे गया, हमको एक ऐसा बोतल खरीदना था हॉट, जिसमें हम हॉट वाटर भी रख सके, मतलब गर्म पानी भी रख सके। बाद में मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है या गर्म पानी पीता है, तो उस बोतल में गर्म पानी आ सके। हम लोग खरीदते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बोतल एकदम सुटेबल है क्वालिटी वाइज, आप इसको रखिए, गर्म पानी इसमें रखिए, अब 12 घंटे तक आराम से गर्म रहेगा इसमें। और हमने जैसे ही गर्म पानी डाला उसमें, वो ब्लास्ट कर गया और हमारा हाथ में भी हमारे चोट लग गई, इंजर्ड हो गया मैं। तो इट मीन्स व्हाट कि यू में नाउ आई एम इंटाइटल्ड टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ क्वालिटी एंड फिटनेस, इवन रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवरी फॉर द प्राइस एज वेल एज फॉर द डैमेजेस जो हम इंजर्ड हुए हैं, इसके खिलाफ भी हम मुकदमा दायर कर सकते हैं। दिस इज द मीन्स ऑफ क्वालिटी एंड फिटनेस। लेकिन केविड इंपिटर कॉन्सेप्ट में कहा गया कि बोला गया कि ये जिम्मेदारी बायर की है, लेट द बायर बी अवेयर। बायर को एक समय मिलना चाहिए एग्जामिनिंग का, एग्जामिन करके फिर उसके बाद खरीदिए। लेकिन ये भी एक इम्प्लाइड कंडीशन होता है कि कंडीशन और क्वालिटी ऑफ फिटनेस का, ये एक्सेप्शन ऑफ रूल भी है, ध्यान रखिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी। मर्केंटेबल क्वालिटी मीन्स मर्केंटाइबिलिटी, एबिलिटी टू मर्चेंट मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसमें मर्केंटाइबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि मार्केट में बेचने के योग्य होना चाहिए। समझ में आ रही बात कि हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसकी मर्केंटाइबिलिटी क्वालिटी होनी चाहिए। मान लीजिए कि हमने एक टेट्रा पैक खरीदा फ्रूटी का पीने के लिए, और खरीद लिया। फ्रूटी कोई एक ब्रांड नहीं लेंगे क्योंकि ब्रांड लेना ठीक नहीं है, कोई एक टेट्रा पैक किसी भी कोल्ड ड्रिंक का हमने खरीदा और वो पैकेट हमारे पास आया। रास्ते में बहुत सारे पैकेट क्या हो गए, फट गए और बहुत सारा नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि वो ट्रेवलिंग पर्पस के लिए सुटेबल नहीं था। तो अगर टेट्रा पैक आप सर्व कर रहे हैं तो इट मस्ट बी हैविंग मर्केंटाइबिलिटी क्वालिटी। ना उसको ट्रक में फूटना चाहिए, ना उसको फ्रिज में फूटना चाहिए, मतलब मर्केंटाइबिलिटी क्वालिटी नहीं थी। तो यू में रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मर्केंटाइबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस, कंडीशन एज टू होलसमनेस इज ओनली इन द केस ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसके संबंध में हम कंडीशन एज टू होलसमनेस अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए कि एक्स के वाइफ को फीवर था, वो मार्केट में गया और कोई एक दवा या कोई एक पाउडर खरीदा, एक सिरप खरीदा और उनको पीने के लिए दे दिया। उसने उसको पिया और उसके बाद उसके वाइफ की डेथ हो गई, क्योंकि वो क्वालिटी जो थी उसकी, वो होलसमनेस उसमें नहीं था, जिसके वजह से उसमें जर्म्स पाए गए और जर्म्स के वजह से उसकी डेथ हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि नाउ द पर्सन इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द वाइफ। नो, उसको दूसरी वाइफ नहीं मिलेगी, लेकिन वो उसके लिए एक तो कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट हो जाएगा और उसकी जितने भी डैमेजेस हैं वाइफ के न होने से उसकी भी रिकवरी उससे कर सकता है। तो दिस इज द मीन्स ऑफ कंडीशन एज टू होलसमनेस। दो बातें और बची हैं,
फटाफट बता देते हैं आपको। वारंटी एज टू, अब देखिए इंप्लाइड वारंटी के बारे में बात कर रहे हैं। वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन, पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। As we know very well about the warranty, warranty is the collateral to the main purpose. In the case of breach of contract, the buyer, in the case of warranty, buyer is entitled to claim for damages only. This is the case of warranty as to quiet possession. Possession important है। अगर मान लीजिए वही वाली बात हो गई, as to title अगर नहीं है तो मान लीजिए कि हमने Y ने X से एक रेडियो खरीदा, उसके बाद 100 रुपए की रिपेयरिंग भी करा ली और उसके बाद रेडियो सुन रहा था, बाद में पुलिस आई, पुलिस ने उसको अपने कस्टडी में रेडियो ले लिया। अब हमको रेडियो भी नहीं मिला और 100 रुपए का रिपेयरिंग भी करा दी है। अब क्या होगा? नाउ वाई इज इंटाइटल टू रिकवर बोथ ऑफ देम फ्रॉम एक्स, पोजेशन एज वेल एज रिपेयरिंग अमाउंट, मतलब डैमेजेस को भी और पोजेशन के लिए, दोनों के लिए क्लेम कर सकता है, क्योंकि दिस इज इंप्लाइड वारंटी। And the last one, warranty from freedom from incumbrance. Incumbrance means what? Incumbrance मतलब कि टाइटल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे हिंदी में बोलते हैं भार मुक्त होना चाहिए। भार मुक्त मतलब टाइटल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर एक्स ने वाई को सामान बेचा है और एक्स उसका रियल ओनर नहीं है, जेड उसका रियल ओनर है, एक्स ने वाई से मोबाइल परचेज किया और बाद में जेड ने वाई के ऊपर मुकदमा दायर किया कि मोबाइल मेरा है, तो आपको देना तो पड़ेगा ही। लेकिन उसके बाद आप एक्स के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटाइटल्ड ही नहीं था। एक्स इज नॉट इंटाइटल्ड टू सेल द मोबाइल बिकॉज ही डजंट हैव अ रियल ओनरशिप ऑफ पार्टिकुलर मोबाइल। तो जो भी प्रोडक्ट होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस होना चाहिए। मैक्सिमम जगह पे होता है एक जमीन 4 लोगों को बेच दी गई, तो दिस इज द केस ऑफ इनकम्बरेंस। ठीक है, इसका मतलब टाइटल डिफेक्ट है उस लैंड में। तो दैट्स ऑल अबाउट इम्प्लाइड एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटी एंड एक्सप्रेस इम्प्लाइड एंड वारंटी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।